So very good morning, beta. Today we are going to discuss the chemical properties of haloalkanes. We are doing chapter number 10, haloalkanes and haloarenes, okay, of chemistry volume 2. In the last video we discussed about the physical properties of haloalkanes and haloarenes. Now we are going to start with the chemical properties, and first of all we will start the chemical properties of haloalkanes. Chemical properties of haloalkanes. So beta, as we already discussed, the carbon halogen bond in case of haloalkanes is polar in nature. As you also discussed in the physical properties, in case of haloalkanes, the polarity of carbon halogen bond is higher. So because of that, the reactivity of haloalkanes is also higher. Means these are the reactive class of organic compound, you can say, and that's why these are also used for synthesizing different types of organic compounds, as we discussed in the earlier lectures of this unit, that haloalkanes and haloarenes are also considered as the synthetic tools in the hands of chemists. And the reason behind that is the reactivity. One of the reason is the reactivity of these compounds towards various reagents. Overall, haloalkanes undergoes two main types of reactions. One are known as nucleophilic substitution reactions and other are elimination reactions. Nucleophilic substitution, reactions, and second, elimination reactions. And the third also, they are the miscellaneous reactions, in which reactions with metals and other species that are discussed. And third, miscellaneous reactions, or you can say reactions with metals. Reactions with metals. So these are the various types of reactions which takes place in case of haloalkanes. And the very first one, we will start with the nucleophilic substitution reactions of haloalkanes. But before starting the nucleophilic substitution reactions, you must know about the nucleophiles. As we already studied in the +1 standard, that nucleophiles are the nucleus loving species. They themselves are electron rich, and during a particular chemical reaction they attack on the electron deficient site. Okay, such reactions are known as nucleophilic substitution reactions. Nucleophilic substitution means the stronger nucleophile replaces the weaker nucleophile from the compound. In this case, in case of haloalkanes, as there are halide ions present in the organic compounds, halogen derivatives होते हैं बेटा ये, and halogens are the weak nucleophiles. Halogens जो होते हैं, they act as weak nucleophiles. So stronger nucleophiles like hydroxyl ions, okay, water, alkoxide ions, similarly amines, primary, secondary, tertiary amines, nitro, nitrile groups, etc. These are the stronger nucleophiles which under certain conditions can displace the halogen atoms, that is the halide ion present in the haloalkanes, and the reaction thus taking place are known as nucleophilic substitution reactions. For example, if we carried out the reaction of haloalkane, any haloalkane with that of alkali, aqueous alkali, then
the formation of hydroxyl ions, that is OH negative ion, which act as stronger nucleophile, displaces the halogen atom from the organic compound. Overall, generally in case of nucleophilic substitution reaction, a particular nucleophile attack on the alkyl halide. Okay, this is any alkyl halide, that is haloalkane. This particular nucleophile will attack on this alkyl halide, and substitution, that is this particular nucleophile replaces this halide ion from the compound, and it itself gets a substitute over here, and formation of nucleophilic substituted product will take place. Okay, for example, in this case, this will get substituted, nucleophilic substituted product formation will take place, and removal of halide ion will takes place. This one. This is the general representation of nucleophilic substitution reaction in case of haloalkanes. So there are total 15 to 16 types of nucleophiles. 15 to 16 type of nucleophile, stronger nucleophile, which can displace the halide ions from haloalkanes to form the respective substituted product. Okay, and let us discuss one by one. The very first of all, substitution by hydroxyl group. The very first reaction is substitution by hydroxyl group. Substitution by hydroxyl group, OH group. Okay. Now in this case, as I already told you, when a given alkyl halide is treated with aqueous alkali, aqueous alkali means either potassium hydroxide or sodium hydroxide, the nucleophilic substitution reaction will take place and formation of alcohols will takes place. Formation of alcohol takes place होगी बेटा. किस तरह से reaction होगी? General reaction लिखेंगे. ये आपका कोई alkyl halide है, any haloalkane like chloro or bromo or ido, anyone. And when this is treated with aqueous alkali means either KOH or NaOH, okay, or even silver oxides of silver, moist silver oxide, then the substitution reaction will take place as if we take here KOH, aqueous potassium hydroxide, it will release aqueous solution of alkali releases hydroxyl ions, OH negative ions, which act as stronger nucleophile and will displace halide ion from the haloalkane. Okay, partial negative, partial positive. This OH negative ion gets substituted over here in this alkyl halide and formation of alcohols will takes place upon small heating. सिंपली हीट करेंगे और रिएक्शन टेक्स प्लेस हो जाएगी. आपके पास क्या बन जाएंगे? अल्कोहल प्लस पोटाशियम हैलाइड जो है वो बाहर हो जाएगा. फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल्स टेक्स प्लेस. ठीक है, दिस इज द जनरल रिएक्शन. यू कैन टेक हियर एनी पर्टिकुलर अल्काइल लाइक इथाइल क्लोराइड. ओके, यू कैन टेक मिथाइल आयोडाइड आल्सो. ठीक है, इन केस ऑफ मिथाइल आयोडाइड, for example, methyl iodide, in this case when we treat this particular species with the moist silver oxide Ag2O, moist, जब हम बेटा moist की बात करते हैं तो एक्चुअली moist silver oxide क्या होता है? सिल्वर हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन AgOH जिसको हम बोलते हैं वो फॉर्मेशन हो जाता है. और यहाँ से हीट करेंगे तो आपके पास ROH, दैट इज मिथाइल अल्कोहल, क्योंकि आपके अल्काइल ग्रुप कौन सा? मिथाइल ग्रुप लिया हुआ है, तो ये फॉर्मेशन हो जाएगा लॉन्ग विद सिल्वर आयोडाइड जो है वो बाहर हो जाएगा. दिस इज हाउ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप टेक्स प्लेस. ओके, नेक्स्ट इज हियर, इसी में आ जाता है सब्स्टिट्यूशन बाय अल्कोक्सी ग्रुप. दिस इज हाइड्रोक्सिल, देन सब्स्टिट्यूशन बाय
अल्कोक्सी ग्रुप। अल्कोक्सी, अल्कोक्सी बेटा होता है OR ग्रुप, R डैश कह सकते हो आप, कोई भी अल्काइल ग्रुप जो है वो टेक्स प्लेस हो सकता है। गिवन अल्काइल हैलाइड को जब हम ट्रीट करवाते हैं किसके साथ, अल्कोक्साइड आयंस के वगैरह के साथ, ठीक है, जैसे सोडियम अल्कोक्साइड वगैरह के साथ अगर ट्रीट करवाते हैं, ठीक है, ये RO ग्रुप होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं RO नेगेटिव से, R डैश O नेगेटिव, ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। हम इसको ट्रीट करवाते हैं सोडियम अल्कोक्साइड, दिस वन, दिस इज नोन एज सोडियम अल्कोक्साइड। कोई भी हो सकता है, आर इथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, कोई भी हो सकता है, ठीक है, इधर कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। आपके पास यहाँ पे ये अल्कोक्साइड ग्रुप इसको हैलाइड ग्रुप को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस हो जाएगी, ईथर फॉर्मेशन होगी। क्या होंगे, ईथर्स, ROR डैश, डाइवेलेंट ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है, एज अ ईथरल ग्रुप, प्लस आपके पास NaX जो है वो बाहर हो जाएगा। दिस इज द हाउ सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्कोक्सी ग्रुप टेक्स प्लेस। इसमें आप एग्जांपल्स वगैरह बेटा कोई भी दे सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इथाइल ब्रोमाइड की ट्रीट करते हैं, इथाइल ब्रोमाइड को ट्रीट करते हैं विद सोडियम इथोक्साइड के साथ, या ब्रोमोइथेन जिसको हम बोलते हैं, अगर ये ग्रुप ले लेते हैं CH3CH2Br when treated with sodium ethoxide, Na positive OCH2CH3, this is sodium ethoxide, ये आपका सोडियम अल्कोक्साइड है, एंड दिस इज सोडियम अल्को ग्रुप कौन सा है यहाँ पे, इथ, दैट इज सोडियम इथोक्साइड। जब ये ट्रीट करेंगे तो हमारे पास इथोक्सी इथेन या डाइथाइल ईथर फॉर्मेशन जो है वो टेक्स प्लेस हो जाएगी, CH3CH2O CH2CH3, डाइथाइल ईथर या इथोक्सी इथेन और डाइथाइल ईथर। In this way you can explain the formation of ethers through nucleophilic substitution reactions of haloalkanes. Clear beta? और this reaction of formation of ethers is known as Williamson ether synthesis reaction. ये एक नेमिंग रिएक्शन है which is known as Williamson ether synthesis. ओके, ये हम अगेन दोबारा करेंगे जब हम अल्कोहल फिनॉल ईथर्स नेक्स्ट यूनिट जो आपका वहां पे इसको डिटेल में करेंगे, विलियमसन ईथर सिंथेसिस को। दिस रिएक्शन पर्टिकुलरली दिस रिएक्शन इज नोन एज विलियमसन ईथर सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर बेटा? सिमिलरली नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप, जिसको हम नाइट्राइल ग्रुप भी बोलते हैं। नाइट्राइल और साइनो ग्रुप, ये कौन सा होता है? CN नेगेटिव, ये साइनाइड ग्रुप बोलते हैं इसको, साइनो ग्रुप। इस केस में क्या होता है, हम जो गिवन अल्काइल हैलाइड है उसको बेटा ट्रीट करवाते हैं अल्कोहलिक पोटाशियम नाइट्राइल के साथ। अल्कोहलिक पोटाशियम नाइट्राइल या पोटाशियम साइनाइड, मतलब अल्काइल साइनाइड्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होती हैं, या अल्केन नाइट्राइल्स बोलते हैं इनको, अल्केन नाइट्राइल्स और अल्काइल साइनाइड्स। ठीक है, रिएक्शन कैसे होती है? गिवन अल्काइल हैलाइड, क्लियर, इसको ट्रीट करवाएंगे किसके साथ? विद अल्कोहलिक कंडीशंस में, विद अल्कोहलिक KCN, K पॉजिटिव CN नेगेटिव होता है अल्कोहलिक कंडीशंस में। यहाँ पे साइनाइड आयन प्रोड्यूस होते हैं जो एज एक्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वो इसको क्या कर देता है? रिप्लेस कर देता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाती है यहाँ पे
हीटिंग करेंगे, स्मॉल हीटिंग, आपके पास ये फॉर्मेशन हो जाती है अल्केन नाइट्राइल और अल्काइल साइनाइड। अल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है, यू कैन राइट एनी, मिथाइल एथाइल प्रोपाइल कुछ भी लिख सकते हो आप, along with the liberation of KX. This is how substitution of nitrile और cyanide group takes place. आप यहाँ पे एग्जाम्पल एक दो एग्जाम्पल आपने खुद लिख लेनी है। अल्काइल ग्रुप कोई भी ले लीजिए, मिथाइल, इथाइल, सिंपल अल्काइल ग्रुप आप लेकर चल सकते हो यहाँ पे, ठीक है जी। यहाँ पे आप लोगों ने ये जो अल्काइल नाइट्राइल प्रोड्यूस होते हैं, ये फर्दर यूटिलाइज किए जाते हैं फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अमाइड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स और अमीन्स, जो प्राइमरी अमीन्स वगैरह, ये फर्दर रिएक्शंस होती हैं इनकी, ठीक है जी। इसमें आपके पास मैंडियस रिडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाती है। मैंडियस रिडक्शन फर्स्ट स्टेप में आपके पास जो अल्काइल नाइट्राइल बना, इसमें अल्काइल नाइट्राइल को हम ट्रीट करवाते हैं विद किसके साथ, डाइल्यूट, दैट इज इथेनॉलिक सोडियम, मतलब सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में। रिएक्शन आप लिख सकते हो RCN जो बना, अल्काइल नाइट्राइल फॉर्मेशन हुई, ठीक है, इसकी रिडक्शन होती है, रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है, 4 मोल्स ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन एड अप होते हैं, लेकिन प्रोड्यूस कहां से हो रहे हैं, दिस वन इथेनॉलिक सोडियम, दिस इज नोन एज इथेनॉलिक सोडियम, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ये एक्ट करता है, ठीक है, एंड द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स RNH2 टेक्स प्लेस, प्राइमरी अमीन्स। यहाँ पे R ग्रुप आप कोई भी इथेन ले सकते हो, इथाइल, इथाइल नाइट्राइल इथाइल ग्रुप ले सकते हो, या फिर मिथाइल ग्रुप ले सकते हो, मिथाइल नाइट्राइल कर सकते हो, CH3 ग्रुप ले लोगे तो आपके पास यहाँ पे इथेनामाइन बन जाएगा। क्लियर, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इस तरह से हम लोग ये रिएक्शंस जो हैं वो कर सकते हैं। दिस इज नोन एज, ये रिएक्शन कहलाती है मैंडियस रिडक्शन, मैंडियस रिडक्शन। ये अगेन हम करेंगे जब आपका लास्ट यूनिट ऑर्गेनिक का 13 यूनिट ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, वहां पे भी ये करेंगे फॉर्मेशन ऑफ अमीन्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। तो यही रिएक्शन आती है, अल्काइल नाइट्राइल्स, उसकी रिडक्शन की जाती है, आपके पास प्राइमरी अमीन्स बन जाते हैं, ठीक है जी। एंड दिस इज द केस, और ये रिएक्शन यूज की जाती है फॉर इंक्रीजिंग द चेन लेंथ, चेन लेंथ इंक्रीज करी जाती है, यहाँ से नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे आप मिथाइल ले रहे हो, तो मिथाइल से क्या बन जाएगा, इथाइल, 3 कार्बन एटम आ जाएंगे ना, 2 मिथाइल से 2 इथाइल बन जाएगा, तो आपके पास इस तरह से इथाइल अमीन बन जाएगा। सो दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्राइल ग्रुप और साइनाइड ग्रुप, इज यूटिलाइज्ड फॉर synthesizing the organic compounds containing 1 carbon atom more than that of the reactants, ठीक है, याद रखना है। means these reactions, this type of reactions are known as, are used for ascending the homologous series, ascending the homologous series means increasing the chain length। क्लियर, होमोलोगस सीरीज, एक पर्टिकुलर होमोलोगस सीरीज के नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करने के लिए हम इन टाइप ऑफ रिएक्शंस का यूज करते हैं, इसका स्पेशली। क्लियर, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद KCN, यहाँ से एक कार्बन एटम इंक्रीज कर गया, उसकी रिडक्शन करेंगे, आपके पास मेन प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड मैंडियस रिडक्शन, ये ध्यान से कर लेनी है बेटा। नेक्स्ट इज सिमिलरली सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोसाइनाइड ग्रुप या आइसोनाइट्राइल, ये था साइनाइड ग्रुप, साइनो ग्रुप। अब जब N के यहाँ पे कार्बन कार्बन, ये जो कार्बन है चेन, जो अल्काइल चेन होगी उसके कार्बन के साथ रिएक्ट हुआ तो ये बनता है नाइट्राइल ग्रुप, ठीक है। लेकिन अगर ये नाइट्रोजन के साथ लिंकेज रहती है तो बन जाता है आइसोनाइट्राइल ग्रुप बोलते हैं, या आइसोसाइनाइड ग्रुप बोलते हैं इसको, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोनाइट्राइल या आइसोसाइनाइड ग्रुप, ये 1 मार्क में बेटा वैसे भी क्वेश्चन बनता है, 2 मार्क में बन सकता है रीजनिंग क्वेश्चन। जैसे अल्कोहलिक KCN के साथ करेंगे तो आपके पास अल्काइल नाइट्राइल्स बनते हैं, ये बन गए अल्काइल नाइट्राइल्स, ठीक है, या अल्केन नाइट्राइल जिसको हम बोलते हैं, या
साइनाइड जिसको हम बोलते हैं। लेकिन जब हम KCN की जगह पे AgCN लेंगे, सिल्वर साइनाइड लेंगे, तो आपके पास फॉर्मेशन होती है आइसोनाइट्राइल की। रिएक्शन लिख सकते हैं, ये रिएक्शन टेक्स प्लेस होगी। आइसोनाइट्राइल ग्रुप जो आपके पास बेटा होता है वो होता है NC ग्रुप। ये यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन लिंकेज रहेगी, साइनाइड ग्रुप में कार्बन कार्बन लिंकेज रहती है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन नाइट्राइल एंड आइसोनाइट्राइल। ओके, तो यहाँ पे RX जो गिवन अल्काइल हैलाइड है, यहाँ पे अब KCN नहीं लेना, अब लेना है AgCN, सिल्वर साइनाइड। ठीक है जी। जब सिल्वर साइनाइड एक्चुअल में क्या होता है, ये कोवलेंट नेचर होती है इसकी, जबकि KCN की आयनिक नेचर होती है। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को एज इट इज प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, जिन मॉलिक्यूल जैसे ये कोवलेंट है तो ये प्रोड्यूस नहीं करता। यहाँ पे नाइट्रोजन अवेलेबल रहता है बॉन्डिंग के लिए, कार्बन ये बाइंड अप रहता है। ठीक है, साइमल्टेनियस अटैक नहीं होता इसके, मतलब ये CN नेगेटिव प्रोड्यूस नहीं होते। यहाँ पहले अटैक होता है, ये नाइट्रोजन एटम यहाँ पे जाके अटैक करता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन लिंकेज पहले टेक्स प्लेस करती है, उसके बाद रिमूवल टेक्स प्लेस करती है। लेकिन उस केस में, पिछले वाला केस नाइट्राइल वाला केस में क्या हुआ कि वहां पे नाइट्राइल आयन प्रोड्यूस हो गए। जो KCN होता है ना, KCN ये आयनिक नेचर का होता है बेटा, और आयनिक नेचर होने की वजह से डिसोशिएट कर जाता है, साइनाइड आयन बन जाते हैं। AgCN इस तरह से डिसोशिएट कर जाता है, K पॉजिटिव CN नेगेटिव, इस तरह से। लेकिन AgCN ब्रेक नहीं करता, ये एज इट इज रहता है बिकॉज ऑफ इट्स कोवलेंट नेचर। सो दैट्स व्हाई विद AgCN, जब AgCN के साथ करते हैं, अल्कोहलिक AgCN के साथ करते हैं सिल्वर साइनाइड के साथ, तो आइसोनाइट्राइल बनते हैं। लेकिन अल्कोहलिक KCN पोटेशियम साइनाइड के साथ करते हैं तो नाइट्राइल बनते हैं। ये 2 मार्क्स में वैसे भी रीजनिंग क्वेश्चन है, आपकी NCERT बुक में भी है ये क्वेश्चन, इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने कर लेना है। तो आपके पास रिएक्शन बन जाएगी, मीडियम वही रहेगा, अल्कोहलिक मीडियम। ठीक है, C2H5OH H2O। ठीक है, हीट करेंगे और आपके पास यहाँ पे आइसोनाइट्राइल जो है वो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस हो जाएगी। अल्काइल कार्बाइल अमाइन बन जाता है, अल्काइल कार्बाइल अमीन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है जी, ये होते हैं अल्काइल आइसोसायनाइड या अल्काइल आइसोनाइट्राइल बोल देते हैं इस चीज को। और अगर वैसे लिखना है हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, RN ट्रिपल बॉन्ड C पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, दिस वन। और इसका नाम होता है अल्काइल कार्बाइल अमीन, अल्काइल कार्बाइल अमीन। क्लियर बेटा? इन दिस वे यू कैन एक्सप्लेन द सब्स्टिट्यूशन ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड ग्रुप। इट इज आल्सो अ रीजनिंग क्वेश्चन भी है ये, दैट इज कौन सा, व्हाई अल्काइल हैलाइड प्रोड्यूस नाइट्राइल्स विद KCN, alcoholic KCN on reaction with alcoholic KCN, potassium cyanide, alkyl halide produce alkyl nitriles, whereas on reaction with AgCN they produce isonitrile. Explain why. तो बेसिक कॉज क्या बताओगे, नेचर ऑफ द KCN एंड AgCN, नेचर ऑफ पोटेशियम साइनाइड एंड सिल्वर साइनाइड, इन विच पोटेशियम साइनाइड इज आयनिक and silver cyanide is covalent. So ionic KCN produces the nucleophile cyanide ion or nitrile ion you can say, which easily substitute over the halide ion and formation of nitrile takes place. But in case of AgCN the formation of nucleophile does not takes place. ठीक है जी, यहाँ पे formation of nucleophile takes place ही नहीं होता, साइमल्टेनियस अटैक होता है जिसकी वजह से कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, ना कि कार्बन कार्बन बॉन्ड। दैट्स व्हाई। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन इट। ठीक है बेटा, यहाँ पे ये जो साइनाइड है ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है। एम्बिडेंट मतलब कार्बन के थ्रू भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकती है और नाइट्रोजन के थ्रू भी हो सकती है, बट ऑन द टाइम ऑफ बॉन्डिंग फॉर्मेशन ओनली वन एटम विल पार्टिसिपेट, आइदर कार्बन और नाइट्रोजन। हम लोग 9th चैप्टर जो था आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहां पे करके आए हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल या एम्बिडेंट लिगेंड्स, एम्बिडेंटेड लिगेंड। एक्चुअल में ये लिगेंड ही होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स क्या हुए, एक तरह से लिगेंड होते हैं ये, जो वहां पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग डिस्कस करके आए। तो इस तरह से आप लोग इसको कर लोगे। सिमिलरली एक और आता है इसी तरह का, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो
नाइट्रोएल्केन्स एंड अल्केन नाइट्राइड्स। नाइट्राइट एंड नाइट्रो ग्रुप भी केमिकल फॉर्मूला सेम है, नाइट्रो ग्रुप NO2 एंड नाइट्राइट ONO, दोनों का वहां पे भी केमिकल फॉर्मूला सेम है, लेकिन जो लिंकेज रहती है वो अलग अलग हो जाती है। उस केस में लिंकेज अलग अलग है दोनों केसेस में। जो जब कार्बन नाइट्रोजन लिंकेज रहती है तो नाइट्रोएल्केन बनते हैं, लेकिन जब कार्बन ऑक्सीजन लिंकेज बन जाती है तो बनते हैं नाइट्राइट्स। ठीक है जी, ये याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्राइट ग्रुप एंड नाइट्रो ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्राइट ग्रुप एंड नाइट्रो ग्रुप। अब दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम ही है। नाइट्राइट ग्रुप में ONO होता है, ONO, ये है नाइट्राइट ग्रुप है बेटा, ये दिस इज योर नाइट्राइट ग्रुप। ओके, और नाइट्रो ग्रुप NO2 होता है, ये यहां में नाइट्रोजन के साथ लिंकेज रहती है, यहां पे ऑक्सीजन के साथ, तो ये बना नाइट्राइट और ये बनेगा नाइट्रो। रिएक्शन यहां पे भी दो डिफरेंट वे से होगी, लेकिन जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे अल्काइल हैलाइड की पोटाशियम नाइट्राइट के साथ, अल्काइल हैलाइड विद KONO, ये है पोटाशियम नाइट्राइट, पोटाशियम नाइट्राइट। जब इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहां पे हमारे पास फॉर्मेशन होंगे अल्काइल नाइट्राइट्स। हीट करेंगे RONO, दिस इज अल्काइल नाइट्राइट, अल्काइल नाइट्राइट along with formation of KX। इस तरह से जो है ये रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगी। ठीक है जी, इसके पीछे रीजन है, ये आयनिक नेचर होती है इसकी। पोटाशियम नाइट्राइट क्या है, आयनिक इन नेचर। सिमिलरली जब हम बात करते हैं नाइट्रो ग्रुप की, तो नाइट्रो में पोटाशियम के साथ नहीं लेंगे, यहां पे अब लेंगे सिल्वर के साथ। ठीक है जी, अब सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्रो ग्रुप सेकेंड रिएक्शन में क्या करेंगे, RX इसको ट्रीट करवा रहे हैं सिल्वर नाइट्राइट के साथ, AgONO, दिस वन। जब यहां पे रिएक्शन टेक्स प्लेस करवाओगे आप, तो अब नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग टेक्स प्लेस होगी, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बनेगा कुछ इस तरह से। यहां पे जो कंडीशंस लेंगे हम लोग, दैट इज अल्कोहलिक कंडीशंस, C2H5OH वाटर। ठीक है, ये अल्कोहलिक कंडीशंस में रिएक्शन जो है वो टेक्स प्लेस करती है। और इस केस में आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी नाइट्रोएल्केन्स। अब यहां पे प्रोडक्ट बनेगा दिस वन, ये, एंड दिस इज नाइट्रोएल्केन, नाइट्रोएल्केन along with the formation of सिल्वर हैलाइड जो है वो बाहर हो जाएगा। ये दोनों रिएक्शंस, तो यहां पे भी जो बेटा कॉज है वो सेम, वही रीजन। एल्कली मेटल कंपाउंड जो होते हैं दे आर मोस्टली आयनिक, बिकॉज ऑफ विच दे कैन प्रोड्यूस या दे प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स इन द वेरी फर्स्ट स्टेप, and after that that particular nucleophile attack on the substrate to form the respective product, nucleophilic substitutive product. But in case of another cases, that is silver nitrite or silver nitrile in the previous case, these are covalent compounds which do not produce strong nucleophile in the very first step. Reaction के very first step में nucleophile produce नहीं होते, alkyl halide अटैक करता है ऑन द रिएजेंट, एंड आफ्टर दैट relieving of NO2 group takes place. That's why nitroalkanes are formed when silver nitrite is made to react with alkyl halide. In the case of potassium nitride, formation of alkyl nitrides takes place. ये बेटा 2 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग क्वेश्चंस,
इस पर्टिकुलर टॉपिक में से, तो इनको आपने एक बार दोबारा से थॉरोली रिवाइज जरूर कर लेना है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बेटा, दिस इज योर मेन रिएक्शंस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसके बाद 2-4 रिएक्शंस और हैं आपके पास। इनमें आपके पास बेसिकली आती है एक हॉफमैन मोनोलिसिस, ठीक। इसके बाद आपके पास हॉफमैन मोनोलिसिस में क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स फॉर्मेशन होते हैं। वहां पे हम अल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं अमीन्स के साथ, मतलब अमोनिया के साथ या प्राइमरी अमीन वगैरह, आगे फिर सब्सिक्वेंट स्टेप्स में रिएक्शन कंप्लीट होती है, तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन होती है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी कुछ जो बच गई हैं। इसी तरह से एक आपके पास अनदर रिएक्शंस आती हैं, फॉर्मेशन ऑफ हायर अल्काइंस बन जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है जिसको, इसके बाद फिंकलस्टीन रिएक्शन है, दैट इज आल्सो द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, फिंकलस्टीन, ठीक है। तो ये आपकी 3 to 4 रिएक्शंस बची हैं, ये हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो टिल आपने ये प्रीवियस वाला केस जो है ये अच्छी तरह से एक बार दोबारा से थॉरोली रिवाइज कर लेना है। यहाँ से बेटा आपको रीजनिंग क्वेश्चन एज वेल एज कन्वर्जन्स, जैसे अभी हमने किया प्रोडक्ट्स कंटेनिंग 1 कार्बन एटम मोर देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट, वो कन्वर्जन की फॉर्म में आपको रिएक्शंस आ सकती हैं। तो इनकी एक बार रिटन प्रैक्टिस आप बच्चों ने सभी ने कर लेनी है, ठीक है बेटा। ओके देन।